Hello, dear students. Welcome to Ghunse Maths Academy. Today we are going to start the chapter matrices from 12th standard. It is the chapter from part 1 of mathematics. It is the second chapter. First chapter is mathematical logic. We'll take it later. Now, first of all, before starting the syllabus of the chapter matrices of 12th standard, we are going to revise the concept which you have studied in 11th standard of determinants and matrices. We have studied this chapter in 11th standard. Now, first of all, what is the difference between determinants and matrices? Now we know that determinant has a definite value, but we cannot find the value of matrix. The difference point of determinant and matrices: determinant and matrix. The main differences between the determinant and matrices that determinant has a definite value. Means we can find the value of determinant, but for matrices, matrix cannot be solved or cannot be evaluated. That is, its value cannot be determined. Now the second main point between the difference of determinant and matrix is that determinant has equal number of rows and columns. Equal number of rows and columns. Whereas about the matrix, matrix has any number of rows and any number of columns. Any number of rows and any number of columns. और एक तीसरा डिफरेंस है जो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में है, that is the elements of the determinant are enclosed in two vertical lines, whereas elements of matrices, elements of matrix or elements of matrices are enclosed in a square bracket. First, these are three main differences between determinants and matrices. This is said to be difference between determinant and matrices. Now, after difference between determinant and matrices, now first of all, what is a matrix? Its definition is
an arrangement of m into n numbers, that is mn numbers, written in m rows and n columns enclosed in a square bracket. Is called a matrix of order m by n. We'll read it as m by n. An arrangement of m into n numbers written in m rows and n columns means matrix is also an arrangement of the numbers को arrange करेंगे in m rows and n columns, that is and enclosed in a square bracket, उसको square bracket में enclose करेंगे, तो it is said to be matrix of order m by n. इसको order को जब read करते हैं तो कैसे read करेंगे, m by n ऐसा read करेंगे, that is said to be matrix of order m by n. Matrices are generally, matrices is the plural form of matrix. Matrix is a singular word and matrices, it is the plural form of matrix. Matrices are denoted by capital letters. That is capital A, capital B, capital C and so on. For example, suppose this is a matrix. A is the matrix 3, 2, 4, 1, minus 1, 6. Now in this matrix we have arranged 6 elements in 3 rows and 2 columns. Now these are said to be rows. This is row first, it is denoted by R1. This is row second, this is denoted by R2. This is row third, denoted by R3. This is column 1 denoted by C1. This is column 2 denoted by C2. Means this matrix A has in all 6 elements which are written in 3 rows and 3 columns. 3 rows and 2 columns. That's why this is said to be matrix of order 3 by 2. Order of matrix A is 3 by 2. इसको 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. जैसे ये एक एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल, अगर बी मैट्रिक्स लिया मैंने, इसको लिखा -1 0 2. नाउ दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो एंड 3 कॉलम्स, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 3. इसको 1 by 3 का बोलेंगे. सपोज थर्ड एग्जांपल आई विल टेक. सी इज द मैट्रिक्स, दिस -5 6. Now it has 2 rows and 1 column. That's why it is said to be matrix of order 2 by 1. So in this way we can find the matrix of any order. कोई भी order हो सकती है. Suppose एक matrix है only having element 1. It is said to be matrix of order 1 by 1. Means it has only 1 row and 1 column. तो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. 1 by 1 ऑर्डर, 1 by 2, 2 by 1, 1 by 3, 3 by 1, 3 by 2, 2 by 3, 3 by 3, 2 by 2, what it may be. ठीक है, तो दिस इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है. अब ये हम थ्योरी पार्ट ले रहे हैं. थ्योरी पार्ट का हर एक कंसेप्ट आपको लिख के निकालना है, इसके नोट्स बनाने हैं. चलो फटाफट लिख के निकालो. आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए. तो चलो आगे चलेंगे. हमने अभी सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है. एन अरेंजमेंट्स ऑफ m into n numbers written in m rows and n columns is said to be matrix of order m by n. जब भी आपको कहा जाता है कि एक आधा मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है, तो 3 चीजें आपको याद रखना है. उसमें ये नोट आपको हमेशा याद रखनी है. नोट पॉइंट याद रखना है कि if
A is a matrix of order m by n, then सबसे पहले याद रखो matrix A contains all mn elements, यानी मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/3 है तो उसमें 6 एलिमेंट है, मैट्रिक्स की ऑर्डर 3/4 है तो उसमें 12 एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स की ऑर्डर 4/3 है तो उसमें 12 एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स की ऑर्डर 3/3 है तो उसमें 9 एलिमेंट्स है. दिस इज कॉलम फर्स्ट और फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स A has m rows and each row contains n elements. ये याद रखना बहुत जरूरी है. एक आधा मैट्रिक्स है A जिसकी ऑर्डर बोला है आपको 3/4 है, तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है, इसमें 12 एलिमेंट्स है, लेकिन रो कितने हैं? 3 रोज है, इसमें 3 रोज है, 3 रोज है, लेकिन ईच रो कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? ईच रो कंटेन्स 4 एलिमेंट्स. क्योंकि इसमें देखिए ये मैट्रिक्स है 3/4 यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. इसको अच्छे से समझिए, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है. इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. इसकी ऑर्डर 3/4 हो गई. इसमें कितने रोज है? 3 रोज है, लेकिन हर एक रो में एलिमेंट कितने हैं? 4 है. सिंपल है, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछा गया तो गड़बड़ हो जाती है. द मैट्रिक्स A हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, ऐसा पूछा जाता है. तो ईच कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? तो अगर 3/4 है तो कॉलम में 3 एलिमेंट्स, यानी यहां पे लिखेंगे हम 3 नंबर का पॉइंट. मैट्रिक्स A has n columns and each column contains m elements. हर एक कॉलम में m एलिमेंट्स है. ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है. कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n के लिए ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है. समझ में आया? इसके बाद देखते हैं नोटेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. नोटेशन इसे बोलेंगे नोटेशन AIJ. क्या होता है ये नोटेशन AIJ? देखते हैं. देखिए नोटेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. नोटेशन AIJ is for what? Notation AIJ for element of matrix. क्या होता है? AIJ is the elements of matrix A in ith row and zth column. AIJ में जो I है it stands for row and J stands for number of column. AIJ is the element of matrix A at the place ith row and jth column. It means suppose A 1 2
the element of first row and second column. Element of first row and second column is denoted by A12. जैसे कि हम मैट्रिक्स निकालेंगे एक, सपोज कोई भी मैट्रिक्स A है, if A is matrix of order 3 by 2, then A can be written as, इस मैट्रिक्स A में 6 एलिमेंट्स हैं, 3 रोज है और 2 कॉलम है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं. दैट इज ऑफ द प्लेस A11. This is a place of the element in first row and first column, which is denoted by A11. Then A12. Now it has only 2 columns, means each row contains 2 elements only. Then A21, A22, and then A31, A32. This is said to be full form of this matrix. This same matrix can be written in the notation Aij form, that is A can be written as matrix Aij of order 3 by 2. इसके अलावा सपोज ये एग्जाम्पल्स है, समझो. If B is equal to the matrix Bij of order 3 by 3, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे हम इसको, या नोटेशन में मैट्रिक्स लिखा है. इससे मैट्रिक्स को हम फुल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? इट इज सेड टू बी B11. इट हैज 3 rows and 3 columns, means it has 9 elements: B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 and B33. These are the 9 elements of matrix B. यानी B को अगर फुल फॉर्म में लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है. This is a matrix B in full form. समझ में आ रहा है आपको? This is about the notation of the element. किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट को हम नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. इसमें C सपोज इट इज द मैट्रिक्स -5 2 3 7 1 0, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? इसकी ऑर्डर है 2 by 3. तो इसमें एलिमेंट को हम नाम दे सकते हैं कि here in this matrix the element C11 is -5, element C12 is 2, element C13 is 3. इसी में एलिमेंट सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिखना है तो C21 is 7, it is C22 is 1 and C23 is nothing but 0. In this way we can give the names for the elements from the matrix C. ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना. कोई भी एक्सपांडेड फॉर्म में मैट्रिक्स दिया है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिया है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसके एलिमेंट्स को नाम दे सकते हैं. समझ में आया सबको ये? ठीक है, आगे चलते हैं. इसी में देखिए, अगर आपको ऐसा गिवन है, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पे? इफ A is a matrix Aij of order 2 by 3 such that Aij is equal to 3i minus 2j for all I and j. क्वेश्चन को अच्छे से, then find matrix A और डिफाइन मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए को डिफाइन करो, ऐसा क्वेश्चन है. क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स Aij of order 2 by 3 such that
aij इज इक्वल टू 3i माइनस 2j। एलिमेंट aij डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है कि aij इज नथिंग बट 3i माइनस 2j। नाउ वी नो दैट I stand for row and j stand for columns. Now we'll write here, given that A is a matrix aij of order 2 by 3, 2 by 3 का ये मैट्रिक्स है। पहले हम इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें 6 एलिमेंट्स है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे? इट हैज 6 एलिमेंट्स लाइक a11, a12, a13, a21, a22, a23, 6 एलिमेंट्स है इसमें, बराबर है। अब इसमें इनको हम फाइंड करेंगे, a11, a12, a13, ये एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस वन फाइंड। बट गिवन दैट here, given that aij is equal to 3i minus 2j, therefore a11 क्या आएगा? a11 is equal to i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 डालनी है यहाँ पे, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा? 3 माइनस 2, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। वैसे फाइंड करेंगे हम a12 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 यानी ये आएगा -1, सेकेंड एलिमेंट इज -1। फिर a13 फाइंड करेंगे, a13 थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस, दैट इज i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है, यानी इसमें फॉर्मूला रखना है 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, that is nothing but equal to 3 minus 6, that is -3। ये 3 एलिमेंट्स फाइंड किए। जैसे ये 3 एलिमेंट फाइंड किए, आगे ये 3 भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। a21 इज इक्वल टू, एक i की वैल्यू 2 हो गई, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, it is nothing but 6 minus 2, that is equal to 4। a22 फाइंड आउट करेंगे, a22 is equal to 3 into 2 minus 2 into 2, that is equal to 6 minus 4 is equal to 2, और a32 that is 3 into 3 minus 2 into 2, 3 sorry, it is 2 3, ये 2 है, ये 3 है, तो ये आएगा 6 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लिखेंगे, यहां पे मैट्रिक्स ए क्या बन गया? देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज गिवन, a11 की वैल्यू क्या आई? 1, a12 की वैल्यू क्या आई है? -1, a13 क्या आया है? -3, a21 क्या आया है? 4, a22 क्या आया? 2, और a23 है 0। तो ये मैट्रिक्स आपका A बन गया फाइनल। तो जो क्वेश्चन पूछा था हमें, A is a matrix aij of order 2 by 3 such that aij is equal to 3i minus 2j for all I and j, then find matrix A। तो इस प्रकार से हम वो मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन आप कर लेना, if A is a matrix aij of order 3 by 3 such that aij is equal to I square plus 3j for all I and j, find A। इसका मैं आंसर लिख के देता हूं आपको, आपने वो घर पे करना है डिटेल में। आंसर क्या आएगा देखिए, A इज इक्वल टू, हर एक एलिमेंट निकालना है, 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें, इसके ऑर्डर 3 by 3 है यानी 9 एलिमेंट, और हर एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, A11 निकालना है तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1,
यानी आएगा 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 3 इज 4, पहला एलिमेंट आएगा 4। फिर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 6, 1 to 1, यानी 1 प्लस 6 7, और 1 प्लस 9 10। फिर 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 3 ये आएगा 7। फिर 4 प्लस 6 ये आएगा 10, और ये आएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 4 प्लस 9 यानी आएगा 30। फिर 3 स्क्वायर, थर्ड रो, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3, दैट इज 12, AIG। फिर 9 प्लस 6, that is 15, and then 9 plus 9, that is 18। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 4 7 10 7 10 13 12 15 18। यानी जब भी आपको ऐसा मैट्रिक्स निकालने के लिए कहा है वो आना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज अबाउट द नोटेशन AIJ फॉर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसमें मैट्रिक्स B दिया है तो ये AIJ की जगह पे BIJ आएगा। C मैट्रिक्स दिया है तो उसकी जगह पे CIJ आएगा। D मैट्रिक्स है तो DIJ एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इसको नोट डाउन करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलो, आफ्टर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स और नोटेशन ऑफ एलिमेंट फॉर द मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाउ व्हाट आर द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल है ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो इसमें याद रखना, इफ A is a matrix AIJ of order m by n and B is a matrix BIJ of order m by n। देखिए, A के ऑर्डर क्या है m by n, B के ऑर्डर क्या है m by n, यानी A और B दोनों की ऑर्डर कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों की ऑर्डर कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सच दैट इसके साथ, ऑर्डर सेम होने के साथ AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I and J, then we can say that A is equal to B, means A and B are said to be equal matrices। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और दूसरा कंसेप्ट, फॉर ऑल I and J मीन्स A11 मस्ट बी इक्वल टू B11, A12 मस्ट बी इक्वल टू B12, A13 मस्ट बी इक्वल टू B13, A21 इज इक्वल टू B21। यानी किसी भी I और J के लिए, यानी उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, आपने इसको 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, इसलिए जस्ट मैं डिफाइन करके आगे चल रहा हूं कि वर्ड में लिखेंगे तो इफ टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। एंड इसका वाइस वर्सा, जैसे इफ टू मैट्रिसेस आर गिवन इक्वल, देन डेफिनेटली देयर ऑर्डर इज सेम एंड their corresponding elements must be equal to same। इसका एग्जांपल देंगे हम कि if matrix 3 2 xy is nothing but equal to the matrix A B 5 7, अगर दो मैट्रिक्स में इक्वालिटी है तो हम लिख सकते हैं कि therefore यहां पे A11 प्लेस का एलिमेंट और यहां पे 11 प्लेस का एलिमेंट दोनों सेम है। अगर ये इक्वालिटी बीच में है, इक्वल का साइन है दो मैट्रिक्स के बीच में, तो A की वैल्यू डेफिनेटली 3 है, B की वैल्यू डेफिनेटली 2 है, X की वैल्यू डेफिनेटली 5 है, और Y की वैल्यू डेफिनेटली 7 है। यानी यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन यूज लाइक दिस। कभी भी दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये चीजें याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद सीखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। मैं इसके सिंबॉलिक डेफिनेशंस आपको लिख के दूंगा और वर्बल डेफिनेशंस मैं बोल के बताऊंगा, आपने वो लिख के लेने हैं जब भी नोट्स निकालने हैं आप, तो उसको लिख के निकालना है। जैसे इफ ए इज अ मैट्रिक्स aij of order 1 by n, then A is called row matrix. इसको समझने की कोशिश कीजिए। इफ A is a matrix aij of order 1 by n, यानी किसी भी मैट्रिक्स में एक रो है, रो फिक्स है इसकी एक, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी होंगे, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखे जाए तो A is a matrix of order 1 by 1 और B is a matrix of order 1 2 यानी 1 by 2 और C is a matrix of order -5 0 3 means its order is 1 by 3 means matrix of order 1 by 2, matrix of order 1 by 1, 1 by 4. Every matrix has only one row but different number of columns. Columns कितने भी हो, all these matrices are said to be row matrices. इनको रो मैट्रिसेस कहा जाता है। तो ये याद रखिए रो मैट्रिक्स। उसमें सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? इफ ए इज अ मैट्रिक्स aij of order m by 1, then A is called column matrix. ये कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम? जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, रोज कितने भी हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सपोज A is a matrix of order 1 by 1 और B is a matrix of order 2 by 1, इसकी ऑर्डर है 2 by 1। C is a matrix of order 3 by 1 और D is a matrix of order 4 by 1। इसकी ऑर्डर 4 by 1 है, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम, इसमें दो रो है लेकिन एक ही कॉलम, तीन रोज है लेकिन एक ही कॉलम, चार रोज है लेकिन एक ही कॉलम। ऑल दीज मैट्रिसेस आर सेड टू बी कॉलम मैट्रिसेस, इनको कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, ये इस पे डिसाइड होता है। इसकी ऑर्डर क्या है? m by 1, तो ये रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर क्या है? 1 by n, इसलिए इसको रो मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज ओनली वन रो, इट हैज ओनली वन कॉलम। तो पहला जो एग्जांपल है दोनों में, बोथ दे आर सेड टू बी रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी ऑर्डर 1 by 1 है, एक ही एलिमेंट है, रो भी एक ही है, कॉलम एक ही है, यानी इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? इफ A is a matrix aij of order m by n such that m is not equal to n, then A is called rectangular matrix. A is rectangular matrix. कंडीशन क्या देखिए, मैट्रिक्स की ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन m इज नॉट इक्वल टू n, इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन। यानी जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट, number of rows and number of columns are different, then that matrix is said to be rectangular matrix. ऐसे मैट्रिक्स को हम rectangular matrix बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसके 2 रोज और 3 कॉलम्स है,
वन रो और एक कॉलम है, सॉरी वन रो और दो कॉलम है, ऐसे मैट्रिक्स हो गए। समझो फॉर एग्जांपल ए इज अ मैट्रिक्स 2 3 5 7 -1 2, it has two rows and three columns. B is a matrix -5 6, it is having two rows, sorry one row and two columns, it is matrix of order 1 by 2. C is a matrix -5 7 1 2 3 4, this matrix is having three rows and two columns. ठीक है, all such matrices are said to be rectangular matrices. Now this matrix B is again row matrix, but as well as it is a rectangular matrix. ये row matrix भी है और rectangular matrix भी है. तो these are the some examples of rectangular matrix. उसके बाद fourth example is a square matrix. अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ ए इज मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n such that m is equal to n, then A is called square matrix. इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? m is equal to n is the important condition. जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होना जरूरी है, तो ही उसको कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल A is a matrix 5, एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस ए. सपोज one matrix is there -4 3 2 0, it has two rows and two columns, it is said to be square matrix. C is a matrix -5 6 7 1 2 8 4 5 -3, it has three rows and three columns, its order is 3 by 3, it is said to be a square matrix. ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है. rows and columns are having equal numbers, it means we can say that it is a square matrix. ये स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. एक होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल होती है, वो किस में होती है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसकी जो ऑर्डर है m by n की जगह पे n by n ऐसा भी डिनोट करते हैं. तो इसमें एक नोट याद रखना, a square matrix of order n by n also said to be of order n. यानी उसको हर बार n by n ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, उसको of order n भी बोल सकते हैं. जैसे a square matrix of order 2, of order 2 यानी उसमें 2 rows और 2 columns है. A square matrix of order 3 यानी इसमें 3 rows और 3 columns है. समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है? if A is a matrix Aij of order n by n, means it is a square matrix of order n. If A is a matrix Aij of order n by n, then इसमें याद रखना Aij for which I is equal to j are said to be diagonal element. Aij for which I is equal to j are diagonal elements.
and second Aij for which I is not equal to j are called non-diagonal elements. Non-diagonal elements. आशा करता हूं कि आप इसको लिख रहे हो मेरे साथ। आप इसको नोट करते जाइए, हर चीज लिख के निकालिए। लिख के निकालने से वो याद में रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में वो रहना चाहिए, हर कंसेप्ट। तो कोई भी n बाय n ऑर्डर है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है जिसके लिए i और j की पोजीशन सेम है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लेस एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लेस एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम, उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे, आर कॉल्ड, ऐसे लिखिए यहां पे, दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। और जिसके लिए i और j सेम नहीं है वो हो गए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक मैट्रिक्स 3x3 का लिखता हूं, A इज अ मैट्रिक्स -2 3 4 7 1 6 2 -4 5. Suppose this is a matrix, then these elements are said to be diagonal elements. These are the elements of place A11, A22 and A33. These elements are said to be diagonal elements. And other elements are said to be non-diagonal elements. ये जो elements है ये non-diagonal elements हो गए. These are said to be non-diagonal elements. इसको भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ये जो एलिमेंट्स है यहाँ के, ये भी है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें एक ही याद रखना, अगर एक आधा स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का है, सपोज A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं, इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है और वो 2 है। अगर एक आधा मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, सपोज A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 2 3 4 5 लाइक दिस, तो 2 and 5 आर सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स, 3 and 4 आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए प्लेस क्या जरूरी है, A11 A22, जिसमें I और J की वैल्यू सेम होना चाहिए। If I is equal to J, then they are diagonal elements. If I is not equal to J, then they are non-diagonal elements. समझ में आ रहा है सबको? तो आज जितना भी मैंने सिखाया है, हर एक पॉइंट आप लिख के निकालो, उसके नोट्स अच्छे से निकालो। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टाइप सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।